Hello students, once again welcome back in this class. Try to sum up the questions and answers. Especially today we will discuss the questions and answers about thoughts, life skills, values and the two questions of the writing skills, and I will also tell you that which way you can write your answers, especially in the writing skill section. So first of all, let us talk the questions about the HOTS. Okay, first question. I hope that you all have the book in front of you, and as first of all in the explanation of the questions you will read the question, then I will provide you the answer with in this video. So I am just going to read the first question of the HOTS, because students, in this before in this class we have already discussed all the questions and also solved the questions, and I have given you a separate video for your answers of the remaining questions of the last questions. So today is the turn of thoughts, life skills, values and two questions of the writing skill. So फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप दैट सबके सामने बुक होंगी और सभी लोग क्वेश्चंस देख रहे होंगे. हॉट्स का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4, फादर्स हेल्प, रिटन बाय आर के नारायण. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. Swami went to school feeling that he was worst perjurer on earth. Describe Swami's feeling at this point. Why did he feel like the worst perjurer? And you have to write the answer in 60 to 80 वर्ड्स. आपको आंसर्स लिखने होंगे 60 से 80 वर्ड्स के बीच में, ठीक है. देन यू विल गेट द मार्क्स, और ये सारे क्वेश्चंस 100% आएंगे आपके एग्जाम में. एक क्वेश्चन हॉट से और एक क्वेश्चन राइटिंग स्किल से. सो आई होप दैट यू विल नॉट ओनली राइट द क्वेश्चन एंड आंसर इन योर फेयर कॉपीज बट ऑल्सो यू विल लर्न. ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा हॉट्स का. स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट, मतलब जब स्वामी स्कूल जा रहा था तो वो लग रहा था कि वो विश्व इस पृथ्वी पर सबसे बुरा आदमी है, या फिर वो आदमी बनने जा रहा है जो कि बहुत ही गलत विटनेस हुआ है, जो सैमुअल के बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दिया था. तो डिस्क्राइब स्वामीज फीलिंग एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर स्वामी की जो फीलिंग थी रास्ते में जाते वक्त वो क्या थी. वाई डिड यू फील लाइक द वर्स्ट परजरर, मतलब अपने आप को वो वर्स्ट परजरर क्यों फील कर रहा था. विश्व का जो सबसे मतलब कि झूठा विटनेस होता है, गवाह होता है, वो क्यों ऐसा फील कर रहा था. यू हैव टू राइट द आंसर इन द 60 or 80 वर्ड्स. सो लेट अस स्टार्ट द आंसर. Answer. Swami was feeling himself worst perjurer on the earth because of that letter in which his father wrote a complaint about Swami's teacher Samuel to his headmaster. Swami gave a description about Samuel that he beat up boys mercilessly. मतलब सबसे बड़ा परजुरर वो पृथ्वी पर अपने आप को वो इसलिए मान रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो भी उसने डिस्क्रिप्शन दिया है सैमुअल के बारे में कि वो लड़कों को बहुत ही दयाहीनता के साथ पीटता है, दैट वॉज एब्सोल्युटली नॉट ट्रूथ. दैट्स वाई ही वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ अ वर्स्ट परजुरर. नेक्स्ट लाइन. When he was approaching near to his school, he was ashamed and conscious about that how he had manipulated the rumors about Samuel for his own benefit. मतलब जब वो स्कूल के लिए नज़दीक पहुंच रहा था तो वो सोच रहा था कि वो उसकी जो आत्मा है बहुत ही उसके ऊपर शर्मिंदा थी कि उसने सैमुअल को बहुत ही मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेट करने के बाद सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उसने मैनिपुलेट करके सारे झूठों को उसने सही के रूप में बोल दिया. सो दिस वाज द क्वेश्चन अबाउट द राइट थॉट्स. You can watch this and write also. Next question, life skill. In this life skill you have a question, what impression have you formed of Swami's relation with his father? How should children and their parents behave with each other? मतलब ये है कि स्वामी का रिलेशन और उसके फादर का रिलेशन कैसा था, आपको कैसा लगता है उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन था. हाउ शुड चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स बिहेव विथ ईच अदर,
एक पेरेंट्स को और उनके बच्चों को एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. ठीक है. सो इन दिस आंसर यू विल सी द क्वेश्चंस, you will see the answers. I'm just zooming the answer. I think that there was a big misunderstanding in the relation between Swami and his father. His father was very strict and obstinate kind of. After being heard many excuses by Swami, he compelled or he forced, ठीक है, him to go to school and also scolded him. Swami's father always expected him to face the problems and tackle that. On the contrary, he also helped him. On the contrary, he also helped him. यहाँ पर जो कॉमा लगा है कॉन्ट्रेरी के बाद, इस कॉमा को यू कैन रिमूव. ओके. His father showed hardness to him, but from the inner side he was caring for him. There should be understanding relationship between the parents and the child and they should never tell a lie. मतलब मैं ये सोचता हूँ, जैसे अगर आपको बोलना हो तो आप लिखोगे कि मैं ये सोचता हूँ कि स्वामी और उसके फादर के बीच में बहुत ही, उनके दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसके जो फादर थे बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिनेट थे और स्ट्रिक्ट थे उसके प्रति. और स्वामी ने बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए कि हेडेक है, लेट हो गया हूँ. ये सारे एक्सक्यूज़ देने के बाद भी उसके फादर ने उसको स्कूल जाने के लिए बाध्य किया और यहाँ तक कि उसके फादर ने उसको डांटा भी. लेकिन ये जो स्वामी के फादर का, जो स्वामी ने एक्सपेक्ट किया था अपने फादर से कि अपने प्रॉब्लम्स को बताएगा तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, आज स्कूल नहीं जाने के लिए स्टेप बैक करने के लिए उसको बोला जाएगा. लेकिन जस्ट इसके कॉन्ट्रैरी में जितने उसको उसके फादर स्कॉल्ड करते थे, ही आल्सो हेल्प्ड हिम अ लॉट फ्रॉम द इनर साइड ऑफ हिज हार्ट. और उसके फादर ने हार्डनेस तो दिखाया, रूखापन तो दिखाया उसके प्रति, लेकिन उसके दिल के अंदर से स्वामी के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर था, क्योंकि वो वही थे. इस चैप्टर का नाम भी है फादर्स हेल्प. जब भी स्वामी मुसीबतों में होता था तो उसके फादर ही हेल्प करते थे उसको कि तुम्हें क्या करना है. लेकिन उनके जो रिलेशंस थे एक दूसरे के बीच में, उसमें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी. दैट वाज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. बट अगर आप वहाँ पर होंगे तो क्या करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड एंड दे शुड नेवर टेल अ लाई. मतलब कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उन्हें एक दूसरे से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यूज़. ओके, सो लेट अस मूव ऑन द वैल्यूज़. क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, स्वामी गिव्स अ वेरी अनफेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल टू हिज फादर. हाउ वुड यू हैव बिहेव्ड हैड यू बीन इन स्वामीज प्लेस. मतलब स्वामी ने सैमुअल के बारे में अपने फादर से बहुत ही रॉन्ग और बहुत ही गलत, बहुत ही बुरा डिस्क्रिप्शन दिया. अगर आप स्वामी की जगह पर होते तो वो कैसा बिहेव करते. ओके, सो नाउ वॉच द आंसर. इफ आई वुड हैव बीन अ स्वामीज प्लेस, मतलब अगर मैं स्वामी के स्थान पर होता तो आई वुड हैव ट्राई टू फाइंड द ट्रूथ. मैं सत्य जानने की कोशिश करता. जैसे कि स्वामी पूरा एग्जैक्ट नहीं पता था अपने टीचर के बारे में कि व्हाट वाज द ट्रूथ. थोड़ा सा मैनिपुलेट था, वो जो भी सुना था वो सारी चीज़ों को बोल दिया, लेकिन उसे सत्य खोजना चाहिए था. अबाउट द एलिगेशंस विच वॉज मेड बाई स्वामी ऑन हिज टीचर, मतलब उन अपराधों के बारे में जो उसने अपने टीचर के बारे में लगाया था, उसके पहले उसको जानना चाहिए था कि व्हाट इज़ द ट्रूथ. फिर उसके बाद है एज मेकिंग एक्सक्यूजेज कैन कॉज अ ग्रेट हार्म टू समवन एंड इन दिस स्टोरी स्वामीज एलिगेशन कुड बी डिस्ट्रॉयड सैमुअल फ्यूचर. मतलब कि जैसे कि बहुत ही एक्सक्यूज़ करने के बाद, बहुत ही एक्सक्यूज़ और गलत डिस्क्रिप्शन से क्या होता है, किसी को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है. और जो भी उसके एलिगेशंस लगाए गए थे सैमुअल के ऊपर, वो सैमुअल के पूरे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता था. स्वामीज डिस्क्रिप्शन हैड केप्ट द पोजीशन ऑफ टीचर एट स्टेक. मतलब स्वामी के डिस्क्रिप्शन ने, जो स्वामी ने डिस्क्राइब किया था अपने फादर के सामने उसके बारे में, उसके ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया. उसके टीचर की पोजीशन को भी
दांव पर लगा दिया। स्टेक मतलब होता है दांव पर लगाना। एंड इफ आई वुड बी देयर, और यदि मैं वहाँ पर होता, आई विल डेफिनेटली नॉट टेल अ लाई अबाउट माई टीचर। तो मैं क्या करता कि निश्चित रूप से अपने टीचर के बारे में झूठ नहीं बोलता। हु पेज सच अ गुड अटेंशन टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, जो टीचर की अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देता है उसके बारे में मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द क्वेश्चन, सॉरी, आंसर ऑफ राइटिंग स्किल 1. नाउ sorry, values. And now let us see the answer of writing skill 1. What is the question? Just read in your book, मैं भी पढ़ रहा हूँ and also explaining. Imagine that you are स्वामी. आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि अगर आप स्वामी हैं तो राइट ए डायरी एंट्री रिलेटिंग योर एक्सपीरियंस विथ सैमुअल इन द स्कूल। तो आपको एक डायरी लिखना है, अपने अनुभवों को बताना है उस डायरी में कि सैमुअल के साथ आपके क्या अनुभव थे। व्हाट वाज द योर एक्सपीरियंस विथ स्वामी विथ सैमुअल इन द स्कूल। सो स्टूडेंट्स, बिफोर कमिंग ऑन द आंसर, मैं आप लोगों को वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर राइटिंग द डायरी ये बताना चाहूँगा कि डायरी लिखते समय हम लोग अपने सेंटेंस में हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मीन्स वी शुड ऑलवेज यूज द पास्ट टेंस बिफोर राइटिंग द डायरी। जो हमारा टेंस है वो हमेशा पास्ट में होना चाहिए, मतलब वाज, वर, डिड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब वही होने चाहिए, फ्यूचर नहीं होने चाहिए। सम टाइम वी कैन यूज प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट भी कभी कभी फ्यूचर की तरह यूज हो सकते हैं। ठीक है। सो लेट अस सी द आंसर। फर्स्ट थिंग यू विल राइट द डेट, जैसे कि टूडेज डेट 8 जुलाई 2020, आज की जो डेट जो है 8 जुलाई 2020 है। देन यू विल राइट द डे, डे है आज वेडनेसडे। आफ्टर दैट यू विल राइट टाइम, टाइम सपोज दैट 10 AM है, लेकिन अगर आप डायरी लिखते हो तो शाम को लिखते हो ना, तो आप लिख सकते हो 7 PM, 8 PM, एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, मीन्स टाइम जो है शाम की होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक AM लिख दिया है। अगर आपको टाइमिंग चेंज करना हो यू कैन चेंज योर टाइमिंग। देन यू विल राइट द डियर डायरी। ओके, आफ्टर दैट you will write your experience, what was your experience for today's। तो आप लिखोगे एक्सपीरियंस में, टुडे इट was the first period in the school and Samuel, who was an arithmetic teacher, was teaching in the class while I was delayed by 1.5 hour। ओके, मतलब आज के दिन पहले पीरियड में सैमुअल अर्थमेटिक या मैथ्स पढ़ा रहा था, तो मैं स्कूल में पहुंचा और क्लास में पहुंचा, और जब मैं क्लास में पहुंचा तो मैं ऑलरेडी 1 घंटे और आधे घंटे मतलब 1.5 घंटे लेट था, देरी से था। ही वॉज अ वेरी नोटोरियस काइंड ऑफ टीचर फॉर पनिशिंग द स्टूडेंट्स, मतलब मेरी जानकारी के अनुसार वो बहुत ही बदनाम टीचर था कि वो स्टूडेंट्स को बहुत ही बुरी तरह से पनिश करता है। स्पेशली टू दोज स्टूडेंट्स हु मेक्स लेट, और मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा पनिश करता है जो कि देरी से आते हैं। At first, Samuel stared me and asked me the reason for late, but in the entire day, his behavior with me was very soft, while he was known for his cruelty। मतलब शुरू में तो उसने मेरी तरफ घूरा, फिर मुझसे पूछा कि मैं देर से क्यों आया हूँ, लेकिन जब मैंने बताया अपने देरी से आने का कारण, तो उस पर उसने पूरे दिन मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया, और उसका जो बिहेव था मेरा मतलब रीजन जानने के बाद बहुत ही अच्छा था, सॉफ्ट भी था। ठीक है, और मेरे साथ उसने कोई भी क्रुएल्टी नहीं की। सैमुअल गेव मी मेनी कंसेशंस, मतलब सैमुअल ने मुझे बहुत सारी छूट दी क्लास में। इन माई ओपिनियन ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, और मेरी ओपिनियन में वो बहुत ही अच्छा टीचर है। मतलब पहले ओपिनियन आपका कुछ और था, अब आपका ओपिनियन जो है चेंज हो गया है। एंड यूज टू टीच हिज स्टूडेंट्स विथ हिज ऑल माइट और एंड नॉलेज, और अपने स्टूडेंट्स को अपने पूरी शक्ति और अपने पूरे ज्ञान के साथ पढ़ाना चाहता है। आफ्टर ऑल ही इज़ वेरी काइंड एंड गुड टीचर, मतलब अंततः वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक नेक टीचर है। नाउ in the last, suppose that if you are writing the diary, then you will write your name, either you will sign। ठीक है, लास्ट में आप लोग साइन करते हो। इन दिस वे फर्स्ट राइटिंग स्किल, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट राइटिंग स्किल इज बीन completed। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट राइटिंग स्किल, बट बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट राइटिंग स्किल मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब छोटा ना दिखाई दे। ठीक है, आई होप दैट दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर।
Okay, now coming on the next slide, writing skill 2. क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर सैमुअल. अब यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आप सैमुअल हैं. राइट डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर सरप्राइज एट स्वामी स्ट्रेंज बिहेवियर इन द क्लास एंड योर फीलिंग्स एट कैनिंग हिम. मतलब अब आपको अपना एक्सपीरियंस सैमुअल की तरह, एज ए टीचर की तरह एक्सपीरियंस शेयर करना है यहाँ पर डायरी में लिखते हुए, और ये भी दिखाना है कि आपका बिहेवियर, उस स्वामी का जो स्ट्रेंज बिहेवियर था, अजीब सा व्यवहार, और जब आपने उसको कई डंडे लगाने के बाद भी तो आप क्या फील कर रहे हो. ठीक है, वैसे ही वंस अगेन वी विल स्टार्ट राइटिंग 8 जुलाई 2020 वेडनेसडे. और यहाँ पर टाइमिंग हम डे के बाद ही लिख सकते हैं. ठीक है, नीचे भी लिख सकते हैं, एज यू विश यू कैन राइट द टाइमिंग. डियर डायरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम द लास्ट स्लाइड. ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइमिंग सही लिखा है, पीएम है, यहाँ पर एम नहीं है, बिकॉज डायरी वी ऑलमोस्ट यूज टू राइट either at the evening or in the night. Okay, so today I cared the strange behavior of Swami and I was simply not believing on his. यहाँ पर देखिए behave की जगह e have हो गया है. ये जो behave है, देखिए यहाँ पर मैंने वो किया है ना, ये इसको behave कर लो, e से पहले b लगा लो. ठीक है ना. हाँ, टुडे आई केयर्ड, मैंने आज ध्यान दिया कि स्वामी का जो बिहेवियर था बहुत ही बदला सा नज़र आ रहा था, बहुत ही स्टैंस था. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही केम 1.5 आवर लेट इन माई मैथ्स क्लास. मतलब 1 से 1.5 घंटा वो लेट आया मेरे मैथ्स क्लास में. एंड प्रिटेंडेड ऑफ हेडेक, और सर दर्द का उसने बहाना भी बनाया. ही वॉज लुकिंग टूडे वेरी नॉटी, और आज वो बहुत ही ज़्यादा शरारती एंड मिस्चीवियस, बहुत ही शरारती और नटखट लग रहा था. ही वॉज शाउटिंग इन द क्लास एंड आई इग्नोर्ड हिम मेनी टाइम्स, और वो कई बार क्लास में चिल्ला भी रहा था, लेकिन मैंने उसको कई बार इग्नोर भी किया, क्योंकि उसको हेडेक था, उसको सर दर्द था, इसकी वजह से मैंने उसको कई बार इग्नोर किया. आई डू नॉट वॉन्ट टू बीट द चाइल्ड लाइक दैट, और मैं इस तरह से बच्चों को पीटना नहीं चाहता हूँ. बट एट लास्ट आई हैड टू बीट हिम, लेकिन अंत में मुझे उसे मारना ही पड़ा था. बिकॉज क्योंकि ही वॉज डिस्टर्बिंग द इंटायर क्लास, क्योंकि वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था. एंड द सिचुएशन वॉज लाइक दैट आई वॉज फोर्स्ड टू बीट हिम, और सिचुएशन ऐसा हुआ कि मुझे उसे पीटना पड़ा. नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, एट द फाइनल of writing about your expressions in the diary, you can write at last your name. okay, यहाँ पर सैमुअल ने लिखा है तो सैमुअल का नाम यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है. if you want to add something more in it, you can. okay, so I hope that it is very clear for you all. And let us move on the next slide for your thanking you. आपने इसको इतने ध्यान से देखा और क्वेश्चंस को नोट किया, इसके लिए थैंक यू. बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट योर वैल्यूएबल रिमार्क्स एंड क्वेश्चंस अबाउट दिस वीडियो, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अदरवाइज एट अ कंटिन्यूअस लेवल यू विल नॉट गेट माई वीडियोज़. ठीक है, ऐसे अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे. सो थैंक यू वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.